محمد بن قاسم نے دیپل تک کے علاقے کی دیکھ بھال کے لیے اپنے جاسوس سندھی لباس میں آگے بھیج دیے تھے، ان میں سے جو بھی پیچھے آتا تھا وہ یہی بتاتا تھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور باہر سندھ کی فوج کی کہیں کوئی سرگرمی یا حرکت نظر نہیں آتی۔ ان رپورٹوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ طاہر میدان میں لڑنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس دوران ان عربوں کی بستی میں ایک واقعہ ہو گیا جنہیں راجہ طاہر نے پناہ دے رکھی تھی اور جن کا سردار حارث علافی تھا۔ ان کی بستی مکران اور سندھ کی سرحد پر تھی۔ محمد بن قاسم نے مفتوحہ علاقے میں جو چوکیاں قائم کی تھیں، ان میں ایک چوکی اس بستی کے کہیں قریب تھی۔ ہر چوکی کے 4 گھڑ سوار یا شتر سوار اپنے اپنے علاقے میں گشت پر نکل جاتے تھے۔ یہ چوکی جو باغی عربوں کی بستی کے قریب تھی، ایسی جگہ بنائی گئی تھی جہاں کچھ سبزہ تھا اور اس سبزے میں گھرا ہوا ایک چشمہ تھا۔ اس علاقے میں بھربھری سی چٹانیں بھی تھی۔ کبھی کبھی باغی عربی عورتیں گھومنے پھرنے کے لیے ادھر نکل آتی تھی، لیکن یہ جگہ بستی سے اتنی قریب بھی نہیں تھی کہ وہاں عورتوں کا میلہ سا لگا رہتا۔ کبھی کبھار 2-4 جوان لڑکیاں وہاں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز بستی کی 3 جوان اور شادی شدہ لڑکیاں اس جگہ گئیں۔ کچھ دیر بعد ان میں سے 2 لڑکیاں چیختی چلاتی گھبراہٹ کے عالم میں دوڑتی ہوئی واپس آئیں۔ تیسری لڑکی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ بستی کے سب لوگ باہر نکل آئے۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ وہ چشمے کے قریب پہنچی تو عرب سے آئی ہوئی فوج کے 4 آدمی جو گھوڑوں پر سوار تھے وہاں آ گئے۔ لڑکیوں کے قریب آ کر چاروں گھڑ سوار اتر کر لڑکیوں پر جھپٹ پڑے۔ یہ 2 لڑکیاں بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئیں، لیکن انہوں نے تیسری لڑکی کو پکڑ لیا۔ اتنا سننا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کے خاوند اور کئی اور آدمی تلواریں اور برچھیاں لیے چشمے کی طرف دوڑ پڑے۔ تیسری لڑکی اس حالت میں واپس آتی ہوئی دکھائی دی کہ وہ قدم گھسیٹ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر پر اوڑھنی نہیں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ روتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ اس کے خاوند نے دوڑ کر اسے سہارا دیا تو وہ خاوند کے بازوؤں میں گر پڑی۔ اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ جو آدمی وہاں پہنچے تھے ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے وہ محمد بن قاسم کی ساری فوج کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہے وہ فوج جس کی مدد ہمارا سردار حارث علافی کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی قسم عرب ایسے تو نہ تھے، یہ سب بنو امیہ کے لوگ ہیں۔ ابھی اس چوکی پر چلو، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چلو ابھی چلو، کتنے آدمی ہوں گے؟ 10-12 ہی تو ہوں گے، سب کو صاف کر دو۔ ایک طوفان تھا جو ان سب کے سینوں میں اٹھ رہا تھا۔ یہ سب عرب کی پیداوار تھے۔ اتنے بڑے جرم کو کوئی بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان میں سب قتل کی باتیں کر رہے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ ان سب کو اکٹھے کھڑا کر کے سنسار کر دو۔ 2-3 نے یہ سزا تجویز کی کہ انہیں گھوڑے کے پیچھے باندھ کر اس وقت تک گھوڑے دوڑاتے رہو جب تک ان کی کھالیں نہ اتر جائیں۔ وہ اس چوکی کی طرف چل ہی پڑے تھے کہ حارث علافی گھوڑا دوڑاتا پہنچا۔ اس کے ساتھ 3-4 اسی کے عمر کے بوڑھے آدمی تھے جو اونٹوں پر سوار تھے۔ علافی کو دیکھ کر سب وہیں تباہی بکنے لگے۔ علافی انہیں خاموش کرانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ تم ہمارے سردار ہو، اس لڑکی کے خاوند نے بڑے غضبناک لہجے میں علافی سے کہا۔ تمہارا حکم ماننا ہمارا فرض ہے، لیکن آج ہم تمہارا صرف یہ حکم مانیں گے کہ اس چوکی کے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تم کہتے ہو کہ ہم عرب سے آئی ہوئی فوج کو اپنی فوج سمجھیں۔ ایک اور آدمی بولا، ہم اس فوج کے سالار کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ خاموش کیوں ہو سردار حارث؟ لڑکی کے خاوند نے چلا کر علافی سے کہا۔ شرمسار مت ہو، کچھ بولو اور ہمیں حکم دو۔ ان چاروں آدمیوں کی سزا یقیناً موت ہے، حارث علافی نے کہا، لیکن مجھے اتنی مہلت دو کہ میں ان کے سالار سے مل لوں۔ کس سالار کی بات کرتے ہو؟ ایک ادھیڑ عمر عرب نے کہا۔ کیا بھول رہے ہو کہ وہ حجاج کا بھتیجا ہے اور یہ وہ حجاج ہے جس کی وجہ سے ہم جلا وطن ہوئے ہیں؟ بنو امیہ کی خلافت کی روٹیوں پر زندہ رہنے والا حجاج ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اس کے پالے ہوئے بھتیجے کے ساتھ تم کیا بات کرو گے؟ وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا الزام ہے۔ مت بھولو کہ ہم عرب ہیں، علافی نے کہا۔ ہماری کچھ روایات ہیں، ہمارے کچھ رواج ہیں۔ میں نے محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں اور کچھ وعدے اس نے میرے ساتھ کیے ہیں۔ اچانک علافی کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا اور اس کی آواز بہت زیادہ اونچی ہو گئی۔ اس نے تلوار نکال کر کہا، اگر حجاج کے بھتیجے نے مجھ سے یہ کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس کے سپاہیوں نے ہماری لڑکیوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تو اس تلوار پر تم محمد بن قاسم کا خون دیکھو گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس کے محافظ میرے جسم کو برچھیوں سے چھنی کر دیں گے۔ مجھے اس کے پاس جانے دو۔ اگر وہ اپنے سپاہیوں کو بچانے کی کوشش کرے گا تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ لوگ اس
कदर भड़के हुए थे कि इन पर काबू पाना नामुमकिन नजर आ रहा था, लेकिन इन जिला वतन अरबों में इतना सब्र मौजूद था कि उन्होंने अपने सरदार के वादे को तस्लीम कर लिया और लड़की को घोड़े पर बिठा कर ले गए। उस वक्त तक रात गहरी हो चुकी थी। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला में था, जो कुछ लंबी मुसाफत थी। हारिस अलाफी निस्फ शब से कुछ पहले 2 आदमियों के साथ चल पड़ा। अलाफी और उसके साथियों को दूर से फजर की अजान की आवाज सुनाई थी। उन्होंने घोड़ों को एड़ी लगा दी ताकि नमाज तक पहुंच जाएं। ये अरमन बेला की अजान थी। ये तीनों किलों के दरवाजों पर पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। उनके लिए दरवाजे इतनी जल्दी नहीं खुल सकते थे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दे रखा था कि सरदार हारिस अलाफी जब भी आए उसके लिए दरवाजे खोल दिए जाएं। लिहाजा उनके लिए दरवाजे खोल दिए गए और वो ऐन उसी वक्त पहुंचे जब जमात खड़ी हो रही थी। उन्होंने पिछली सफ में खड़े होकर नमाज पढ़ी। नमाज के बाद अलाफी नमाजियों के हुजूम को चीरता हुआ मोहम्मद बिन कासिम तक पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम उसे इतनी सवेरे देखकर हैरान हो गया। आप पर अल्लाह की रहमत हो, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। आप कोई बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं? हाँ, कासिम के बेटे अलाफी ने कहा। खबर बहुत बड़ी और बहुत बुरी है। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था कि मोहम्मद बिन कासिम के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने कुछ भी ना कहा और अलाफी और उसके दोनों साथियों को अपने कमरे में ले गया। ये किला था जिसमें किलादार की रिहाइश बड़ी शाहाना थी। इब्ने कासिम अलाफी ने कहा, अगर अलाफियों के साथ दोस्ती सच्चे दिल से लगाई है तो आज दोस्ती का हक अदा कर दे। हक अदा करूंगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा। अगर आप कोई एहसान करके इसका सिला मांगते हैं तो अपने मुंह से कहें, मैं इतना ही सिला दूंगा। हारिस अलाफी ने उसे ये सारा वाक़या सुनाया कि उसके सिपाहियों ने किस तरह 3 लड़कियों पर झपट कर एक लड़की को खराब किया है। ये सुनकर मोहम्मद बिन कासिम जैसे सकते में आ गया। मेरे अजीज अलाफी ने कहा, मैंने अपने कबीले के लोगों को और उन तमाम अरबों को जो यहाँ रहते हैं और जिन्हें तुम्हारा खलीफा बागी कहता है, बड़ी मुश्किल से रजामंद किया है कि मैं अरब से आई हुई फौज की अगर खुल्लम खुला मदद ना करें तो दर पर्दा कुछ न कुछ जरूर करें, और अगर दिल ये भी ना माने तो इतना ही करें कि इनके खिलाफ हमारी तरफ से कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन अब मेरी बस्ती का ये आलम है कि अगर तुम वहाँ चले जाओ तो मालूम नहीं कितनी बर्छियाँ तुम्हारे जिस्म में उतर जाएंगी। मैं इन्हें एक वादे पर ठंडा करके आया हूँ। अगर मैं जरूरत से ज्यादा उनकी तवक्कुआत के खिलाफ वक्त लगा कर वापस गया तो शायद वो मुझे रास्ते में ही मिल जाएं और वो मुझे ही कत्ल कर दें। हाँ हारिस, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उन्हें इतना ही ज्यादा मुश्तिल होना चाहिए। ये वाकया ऐसा नहीं कि लोगों को बातों से ठंडा किया जा सके। मुझे बता, कासिम के बेटे, हारिस अलाफी ने कहा। तू क्या करेगा? कुछ नहीं करना तो मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। मैं दिबल पर हमला करूंगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, लेकिन इस मामले को मैं सबसे पहले निपटाऊंगा। मोहम्मद बिन कासिम ने उसी वक्त अपना घोड़ा मंगवाया और अलाफी और उसके साथियों के साथ चल पड़ा। दस्तूर के मुताबिक चंद एक मुहाफिज उसके साथ गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जासूसी के निज़ाम को एक खास तनज़्ज़ुम दे दिया था और जिस तरह उन्होंने इस निज़ाम को चलाया था वो इतना कामयाब रहा था कि अरब की फौज का लाजमी हिस्सा बन गया था। बाद में जासूसी एक अलग महकमा बना दिया गया जिसके लिए अलग सालार मुकर्रर किया गया था, लेकिन इस महकमे की सालारी उस आदमी को मिलती थी जिसमें जमीन की तहों के नीचे से भी राज और सुराग निकाल लेने की अहलियत होती थी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ इंटेलिजेंस का सालार था, उसका नाम शाबान था। ये मोहम्मद बिन कासिम के कबीले का आदमी था। उसके मुतालिक मशहूर था कि उसके पास कोई जादू है कि वो जमीन और आसमान के राज भी पता कर लेता है। मोहम्मद बिन कासिम जब अलाफी के साथ रवाना हुआ तो शाबान भी उसके साथ गया। मोहम्मद बिन कासिम ने खास तौर पर उसे साथ लिया था। हारिस अलाफी और उसके साथी भी घोड़ों पर सवार थे। इन्हें तवक्को थी कि वो दोपहर तक बस्ती तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने किले से निकलते ही घोड़ा दौड़ा दिया। यूं पता चलता था कि जैसे वो उड़कर वारदात वाली चौकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हो। वो इन सब से आगे था। उसने शाबान को अपने साथ रखा था और उसके साथ वो बातें करता जा रहा था। दोपहर से खासा पहले वो चौकी तक पहुँच गए। अपने सालार को देखकर चौकी के तमाम आदमी बाहर निकल आए। मोहम्मद बिन कासिम पीछे हट आया और शाबान चौकी के आदमियों के करीब गया और उनसे पूछा कि कल पिछले पहर शाम तक गश्त पर कौन कौन निकला था। 4 सिपाहियों ने हाथ खड़े किए। क्या तुम चारों ने उन तीनों लड़कियों पर हमला किया था? शाबान ने पूछा। क्या तुम में से कोई ऐसा भी था जिसने इस जुर्म में शरीक होना पसंद ना किया हो? चारों हैरत से शाबान की तरफ देखने लगे। तुम देख रहे हो कि सालार आला साथ आए हैं, शाबान ने कहा। इससे समझ लो कि ये मामला कितना संगीन है और तुम्हारा जुर्म बेनकाब हो चुका है। दुश्मन की जमीन पर खड़े होकर अपनी जबान नापाक ना करें, एक सिपाही ने गुस्सीली आवाज में कहा। वतन से दूर लाकर हमें यूं जलील ना करें सालार। उस सिपाही की बात अभी पूरी नहीं हुई थी कि एक और सिपाही उससे ज्यादा गुस्सीली और बुलंद आवाज में मोहम्मद बिन कासिम की तरफ हाथ लंबा करके बोला, ए सालार अरब, तुझे उस अल्लाह की कसम है जिसके नाम पर लड़ने के लिए तू हमें यहाँ लाया है, हमें ये बता कि ये शख्स हम पर ऐसी तोहमतें क्यों लगा रहा है? हम तेरी टक्कर के आदमी नहीं। मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ भी न कहा। उसने ये तफ्तीशी काम शाबान के सुपुर्द कर दिया था और
और ये शाबान ही का काम था। चारों सिपाही एहतजाज और वावेला बर्पा कर रहे थे। अलाफी उसके साथ अलग खड़े देख रहा था। हारिस अलाफी शाबान ने कहा, तीनों लड़कियों को बस्ती से अपने साथ ले आएं और जितने भी लोग उनके साथ आना चाहते हैं आ जाएं। अलाफी के जाने के बाद सालार शाबान ने चौकी के कमांडर से कहा कि उस वक्त जो आदमी गश्त पर गए हुए थे इन्हें भी यहाँ ले आए। कमांडर के जाने के बाद मोहम्मद बिन कासिम और शाबान अलग जा खड़े हुए और आपस में बातें करने लगे। पहले सिर्फ 4 सिपाही वावेला बर्पा कर रहे थे। अलाफी के जाने के बाद चौकी के तमाम सिपाहियों ने कुछ न कुछ बोलना शुरू कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम में बहुत तहम्मुल था। सिपाही बाज बातें ऐसी नागवार कर रहे थे जो कोई सिपाही भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम खामोशी से सुनता रहा। आखिर शाबान ने इन्हें तसल्ली दी कि बेइंसाफी नहीं होगी। सालार आला एक अधेड़ उम्र सिपाही ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा, मालूम होता है कि ये लोग जो आपके साथ आए हैं ये बागी लोग हैं जिन्हें अरब से निकाल दिया गया था और सिंध के राजा ने इन्हें अपनी शफकत के साए में रख लिया है। हाँ, ये वही लोग हैं। चौकी के एक सिपाही ने कहा, साफ पता चलता है कि ये हम में से नहीं, ये यहाँ के हिंदू राजा का नमक हलाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदुओं से पहले इन मुसलमानों को साफ किया जाए, ये हमारे बदतरीन दुश्मन हैं। क्या तुम लोग अपनी ज़बानें बंद नहीं रख सकते? शाबान ने कहा, मैं कह चुका हूँ कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, इंसाफ होगा। साफ नजर आ रहा था कि इन सिपाहियों के दिलों में बागी अरबों के खिलाफ नफरत के शोले भड़क उठे थे। अलाफी तीनों लड़कियों के साथ दूर से आते नजर आया। पीछे पीछे बस्ती के कई आदमी आ रहे थे। शाबान ने इनकी तरफ घोड़ा दौड़ा दिया और इन्हें दूर ही रोक लिया। उसके पूछने पर उस लड़की को आगे किया गया जिसके मुतालिक कहा गया था कि उसके साथ मुजरिमाना ज्यादती हुई है। चश्मा करीब ही था। वो चश्मा भुरभुरी सी चट्टानों से घिरा हुआ था। शाबान इस लड़की को इन चट्टानों की ओट में ले गया और उसने अपनी जबान में पूछा कि वो कौन सी जगह थी जहाँ इस पर और इसकी सहेलियों पर सिपाहियों ने हमला किया था। लड़की शाबान के मुंह की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद शाबान ने अपना सवाल दोहराया तो लड़की ने दाएं बाएं सर हिला दिया। हम इंसाफ करने आए हैं लड़की, शाबान ने कहा। जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है उसे तुम्हारे सामने कत्ल किया जाएगा, इतनी खौफजदा ना हो। लड़की फिर भी चुप रही। शाबान लड़की को वहीं छोड़कर चट्टानों से बाहर आया। क्या ये लड़की गूंगी है? उसने बुलंद आवाज में पूछा। अलाफी आगे बढ़ा और शाबान के करीब चला गया। शाबान, अलाफी ने कहा, तुमने इसके साथ अरबी में बात की होगी। ये लड़की अरबी नहीं समझती, ये हिंदू थी। कोई 1 साल पहले इसने हमारे एक आदमी के साथ शादी करने की खातिर इस्लाम कबूल कर लिया था। और इसके साथ जो दूसरी लड़कियां थीं, शाबान ने पूछा, क्या वो तुम्हारे कबीले की हैं? नहीं, अलाफी ने जवाब दिया, वो भी यहीं की रहने वाली हैं। पहले हिंदू थी और यही कोई साल भर पहले उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया है और उनकी शादी हमारे आदमियों से हो गई है। शाबान ने एक आदमी को साथ किया जो सिंधी और मकरान की जबान बोल सकता था और उसे लड़की के पास ले गया। शाबान ने उस आदमी की मार्फत लड़की से कहा कि वो जगह दिखाए जहाँ तीनों लड़कियों पर हमला हुआ था। लड़की ने चंद कदम परे जाकर बताया कि ये जगह थी। शाबान ने उसे कहा कि वो पूरा वाकया सुनाए। लड़की ने बोलना शुरू कर दिया और तर्जुमान उसका बयान अरबी में सुनाता गया। बयान सुनकर शाबान ने लड़की से कहा कि वो जगह दिखाए जहाँ सिपाहियों ने उसे गिराया था। लड़की ने एक जगह दिखा दी। शाबान ने उस लड़की को एक चट्टान की ओट में भेज दिया और दूसरी लड़की को बुलाया और साथ ये कहा कि उसका खामद भी आए। अरबों के जहन और सुराग रसानी शुरू से ही मशहूर है। उनके ख्याली किस्सों और कहानियों में भी अरबों की दानिशमंदी साफ झलकती नजर आती है। अरबों के रहन सहन, रस्म व रिवाज और सकाफत के मुतालिक यूरोपीय मुसन्निफों ने किताबें लिखी हैं। हर मुसन्निफ ने, ख्वाह वो अरबों के खिलाफ तासुब ही क्यों न रखता हो, अरबों की अकल और दानिश को बहुत सराहा है। इसके मुतालिक तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती कि अरब के लोग सहरा के भेदी थे। आज भी बुद्दुओं में ये जहानत और सुराग रसानी की गैर मामूली अहलियत मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं कि इल्म फल्कियात का जो राज मुसलमानों ने दिए थे वो कोई और कौम नहीं दे सकती। ये कहना गलत नहीं कि अरबों ने खला के सुराग रसानी भी कर ली थी। शाबान तो जैसे पैदाइशी सुराग रसां था। दूसरी लड़की को शाबान उसके खामद और तर्जुमान के साथ चश्मे की दूसरी तरफ ले गया और उससे पूछा कि उन सिपाहियों ने किस जगह पर हमला किया था। लड़की ने हाथ के इशारे से बताया कि वो जगह थी। शाबान के कहने पर इस लड़की ने भी पूरा वाकया बयान किया। उस लड़की को दूर खड़ा कर दिया गया और शाबान ने तीसरी लड़की को उसके खामद के साथ बुलाया। शाबान उसे एक और जगह ले गया और उसे कहा कि वो जगह बताए जहां उन पर सिपाहियों ने हमला किया था। इस लड़की ने एक जगह की तरफ इशारा किया। शाबान के कहने पर इसने भी वही वाकया बयान किया। इन लड़कियों को एक तरफ खड़ा करके शाबान ने पहली लड़की को बुलाया और उसके खामद को भी बुलाया गया। उसका खामद इस कदर मुश्तिल था कि गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख होता जा रहा था। शाबान पर टूट टूट पड़ता था, लेकिन शाबान तहम्मुल और खामोशी से अपना काम करता रहा। शाबान के पूछने पर लड़की ने बताया कि वो इन चारों सिपाहियों को पहचान सकती हैं। चौकी के सिपाहियों को, जिनकी तादाद 12 थी, अलग खड़ा किया गया। शाबान उस लड़की को उसके खामद के सामने सिपाहियों के सामने ले गया और लड़की ने कहा कि इन चारों
चारों सिपाहियों को पहचाने। लड़की ने बड़ी तेजी से 4 सिपाहियों की तरफ इशारा कर दिया। उन सिपाहियों को दूसरे से दूर खड़ा कर दिया गया और उस लड़की और उसके खावंद को अलग भेज दिया गया। दूसरी लड़की अपने खावंद के साथ शाबान के बुलावे पर आई। उसने कहा कि वो एक सिपाही को अच्छी तरह पहचानती है। उसे सिपाहियों के सामने ले गए तो उसने दरमियान में से एक सिपाही के सीने पर जाकर हाथ रखा। इस सिपाही को अलग कर दिया गया। तीसरी लड़की आई तो उससे कहा गया कि वो भी एक सिपाही को पहचानती है। उसने ज्यादा गौर से देखे बगैर एक सिपाही की तरफ इशारा कर दिया। शाबान ने अलाफियों और तीनों लड़कियों के खावंदों को अपने पास बुलाया और इन्हें कहा कि ये जो 4 सिपाही तुम्हारे सामने खड़े हैं ये कल उस वक्त गश्त पर थे और लड़कियों ने जिन्हें मुलजिम ठहराया कर अलग किया है वो अपने खैमों में थे। शाबान ने तीनों लड़कियों को भी बुला लिया और इन्हें उनके खावंदों के पास खड़ा कर दिया। मेरे दोस्तों, शाबान ने उन सब से कहा, इन तीनों लड़कियों ने वो जगहें मुख्तलिफ बताई हैं जहाँ उन पर हमला हुआ था। तुम भी सहराओं में पैदा हुए हो और तुम जानते हो कि सहरा की रेत भी बोला करती है। सिपाही घोड़ों पर सवार थे इस इलाके में और इन जगहों पर जहाँ ये लड़कियाँ कहती हैं कि उन पर हमला हुआ। 4 घोड़ों के सीमों के निशान दिखाओ। ये कल शाम का वाक़या है। इसके बाद ना आंधी चली है ना बारिश हुई है। कोई निशान मुझे दिखा दो। इस लड़की ने वो जगह मुझे दिखाई है जहाँ इसे गिराया गया था। मेरे साथ आओ और वो जगह देखो। शाबान ने उस जगह ले गया। वहाँ ऐसा कोई निशान और कोई खोरा ना मिला। मेरे हमवतनों, शाबान ने कहा, इन तीनों लड़कियों ने मुख्तलिफ जगहें बताई हैं जहाँ इन पर हमला हुआ। ये भी सोचो कि सिपाही घोड़ों पर सवार थे। क्या वजह थी कि उन्होंने भागने वाली 2 लड़कियों का पीछा न किया? क्या ये लड़कियां घोड़ों की रफ्तार से ज्यादा तेज दौड़ सकती हैं? इर्द गिर्द कोई आबादी नहीं कि ये डरे हुए होंगे। ये भी सोचो कि इन तीनों लड़कियों ने मुख्तलिफ आदमियों को शनाख्त किया और जो उस वक्त गश्त पर थे वो ये तुम्हारे सामने खड़े हैं। शाबान ने इन लड़कियों की मौजूदगी में उनके बयान सुनाए और कहा कि इनसे पूछो कि उन्होंने यही बताया है या नहीं। मेरे भाई हारिस अलाफी, शाबान ने कहा, बनु सकीफ के खून में अभी तक कोई मिलावट नहीं हुई। अगर बनु उसामा खानदानी और खूनी दुश्मनी को भूल कर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो बनु सकीफ का सालार अपनी जान देकर दोस्ती का हक अदा करेगा। क्या तुमने ये नहीं सोचा कि ये लड़कियां कुछ महीने पहले तक हिंदू थीं? ये हिंदू घरों में पैदा हुई, बुतों को पूजती, जवान हुई, फिर इन्हें ये 3 अरब अच्छे लगने लगे तो ये मुसलमान हो गई। अपना मजहब और अपनी जहनियत इनके खून में शामिल है। अगर ये मेरी लड़कियां होती तो मैं इनसे किसी और तरीके से पूछता कि बताओ सच क्या है और झूठ क्या। ये एक ढोंग रचा रही हैं हमारे और तुम्हारे दरमियान निफाक पैदा करने के लिए। अलाफी ऐसे ओछे तो नहीं हुआ करते थे, लेकिन सिंध और मकरान की रेत अरब के मुकद्दस रेज़गारों पर गालिब आ गई है। तुम अपने वतन में थे तो बागी कहलाए। खुदा की कसम तुम्हारी बगावत जायज थी। कहाँ गई तुम्हारी वो दानिशमंद और तुम्हारी वो जुर्रात? अब ये तुम्हारी लड़कियां हैं। अगर तुम और इनके खामद मुझे इजाजत दो तो मैं अभी दुर्वाग और सदाकत को अलग अलग कर दूंगा। अचानक उस लड़की का खामद, जिसके मुतालिक कहा गया था कि सिपाहियों के तशद्दुद का निशाना बनी है, लड़की पर झपट पड़ा। उसके बालों को दोनों हाथों में इस तरह पकड़ा जिस तरह चीता या शेर अपने शिकार में पंजे गाड़ देता है। उसने लड़की को बालों से पकड़कर घुमाया और जमीन पर पटक दिया। वो पीठ के बल गिरी तो उसके खामद ने तलवार निकाल ली। पाँव उसके सीने पर रखकर तलवार की नोक उसकी शहरक पर रख दी। सच बता हिंदू की बच्ची, उसने दांत पीस कर कहा। ऐन उसी वक्त अलाफी ने अपनी तलवार निकाल ली और दूसरी दोनों लड़कियों के सामने खड़ा हो गया। सच बोलोगी तो जिंदा रहोगी, उसने दोनों लड़कियों से कहा। फिर वो दूसरों से मुखातिब होकर बोला, तीनों के बालों को रस्सियों से बांधो और रस्सियां घोड़ों के पीछे बांध दो। नहीं, एक लड़की की सख्त खौफजदा आवाज सुनाई दी। मैं ऐसी मौत नहीं मरना चाहती, सच सुनना है तो मुझसे सुनो। उधर वो लड़की जिसकी शहरक पर उसके खामन ने तलवार की नोक रखी हुई थी बोल पड़ी। वो भी सच बताने पर आ गई थी। तीनों लड़कियों ने जो हकीकत बयान की वो इस तरह थी कि इन तीनों को राजा दाहिर की सगी बहन माहिन रानी ने, जो उसकी बीवी भी थी, तैयार किया था कि वो 3 अरबों के साथ शादी कर ले और उन पर छा जाएं। ये उन दोनों का वाकया है जब हज्जाज का भेजा हुआ दूसरा सालार बदील बिन तैफा मारा गया था और राजा दाहिर इस फिक्र में पड़ गया था कि अब अरब से ज्यादा ताकतवर फौज आएगी। ये पहले सुनाया जा चुका है कि दाहिर ने हारिस को रजामंद करने की कोशिश की थी कि अरबों पर हमला किया तो तमाम बागी अरब उनके खिलाफ लड़े, लेकिन अलाफी रजामंद नहीं हुआ था। जब मोहम्मद बिन कासिम की फौज मकरान पहुंच गई और दाहिर को इसकी इत्तला मिली थी तो वजीर बदहिमन ने उसे मशवरा दिया था कि वो जमीन दोज तरीके से मुसलमानों की फौज को कमजोर कर दे और इस खतरे को भी खत्म कर दे कि मगरान में आबाद अरब हज्जाज बिन यूसुफ की फौज का साथ देंगे। बदहिमन को मालूम था कि माहिन रानी पहले ही ये हथियार इस्तेमाल कर रही है। इन तीनों लड़कियों ने बताया था कि वो माहिन रानी की भेजी हुई औरतों से मिलती रहती हैं और ये तीनों जब
सैर सपाटे के बहाने कहीं बाहर जाती हैं तो वो दरअसल माहिन रानी की भेजी हुई उस औरत से मिलने जाया करती थीं। इन्हें माहिन रानी की आखिरी हिदायत ये मिली थी कि अलाफी ने अरब की हमलावर फौज के साथ दोस्ती कर ली है, लिहाजा उनके दरमियान दुश्मनी पैदा करनी है। रानी ने दुश्मनी पैदा करने का ये तरीका बताया था। उनकी किस्मत का फैसला हमारा सरदार हारिस अलाफी करेगा, एक लड़की के खामन ने कहा। तीनों को कत्ल कर दो, अलाफी ने कहा। तीनों लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी। वो रहम की भीख मांग रही थी और वो कहती थीं कि ये काम उन्होंने खुद नहीं किया, उनसे करवाया गया है। लेकिन अलाफी ने एक बार फिर कहा कि इनकी जान बख्शी नहीं की जाएगी। रुक जाओ हारिस अलाफी, मोहम्मद बिन कासिम की आवाज़ सुनाई दी। वो एक तरफ खड़ा खामोशी से अपने सुराग रसां सालार की कार्रवाई देख रहा था। उसने कहा, इन्हें बेगुनाह समझो, मैं दाहिर को एक पैगाम भिजवाना चाहता हूँ। उसने तीनों लड़कियों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे सिपाही तुम्हें घोड़ों पर बिठाकर किसी बस्ती में छोड़ आएंगे। राजा दाहिर से कहना कि लड़ाई मैदान में लड़ी जाती है और लड़ाई मर्द लड़ते हैं, औरतों को ना लड़वाओ। और उसे ये कहना कि अपनी सगी बहन को बीवी बनाने वाले को आखिर सजा मिलनी ही है, अपने भयानक अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। मोहम्मद बिन कासिम की चौकी के कमांडर से कहा गया कि वो इन तीनों लड़कियों को अलग अलग घोड़ों पर बिठाकर 2 सवारों को साथ भेजे और यहाँ जो करीबी बस्ती है इन्हें वहाँ के किसी सरकर्दा आदमी के हवाले कर दे। इस तरह बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होते होते रह गई, वरना हिंदू जहन ने मुसलमानों में दुश्मनी पैदा करने की बड़ी पुरकशिश और खौफनाक कोशिश की थी। उस दौर में हिंदुस्तान एक पुरस्रार जमीन थी। हिंदुस्तान के शोभदाबाज मशहूर थे। यहाँ के मंदिरों के अंदर एक और दुनिया आबाद थी जो हसीन भी थी और भयानक भी। अरबों का मजहब और कल्चर हिंदू मत के बिल्कुल उलट था। मोहम्मद बिन कासिम को अभी अंदाजा नहीं हुआ था कि उसका दुश्मन इसके खिलाफ कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल करके उसे शिकस्त देने की कोशिश करेगा। मोहम्मद बिन कासिम अरमन बेला पहुंचा और उसने अगली सुबह दीबल की तरफ कूच का हुक्म दिया। क्या वो बुत अभी तक नहीं आया? राजा दाहिर ने गुस्से और बेताबी से पूछा। आ रहा होगा महाराज, उसे जवाब मिला। नहरून दूर तो नहीं कि वो 3 दिनों में यहाँ तक ना पहुँच सके? राजा दाहिर ने कहा। अरब वालों की इताअत कबूल करके वो भूल गया है कि उसे हमने हाकिम मुकर्रर किया है। हम उसे हाकिम से भिखारी भी बना सकते हैं। दाहिर को तफसीली रिपोर्ट मिल चुकी थी कि अरब से कितनी ज्यादा फौज आई और किस कदर ज्यादा साजो सामान के साथ आई है। अब उसे ये भी पता चल चुका था कि कंचपुर और अरमन बेला पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका है और गुज़िश्ता रात उसे माहिन रानी ने बताया था कि उसने जो 3 हिंदू लड़कियां बागी अरबों की बस्ती में भेजी थी वो वापस आ गई हैं और ये वार बेकार गया है।